Hello, dear students of class ninth. Once again, I welcome you all in this online classes. So, as we all know, we are doing chapter number 14, which is statistics. So, and we have concluded or finished exercise 14.3 of this chapter. Today, we have to start exercise 14.4. And in this, the topic or concept which we are going to study is mean, median, and mode. Okay, that's very important topic which you are going to study in your future in your next classes also in 10th 11th and 12th also mean median and mode. So this is very important topic which you have to understand very clearly, very nicely, so that it will be beneficial. It will be beneficial for you in the next classes. So first of all, mean, median, and mode. Okay, I'm not going to explain first of all these topics and then doing the question. We'll be doing the question and then we'll be understanding the topic. Let us go for the very first question. The very first question is the following number of goals were scored by a team in a series of 10 मैचेस 10 मैचेस में कितना कितना गोल्स एक टीम ने बनाया है, ठीक है, वो लिखा हुआ है. जैसे फर्स्ट में 2 3 4 5 0 इस टाइप से, ठीक है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर्स. एक आपको स्टूडेंट्स एक डाटा गिवन है, ठीक है, कुछ नंबर्स गिवन है, 10 नंबर्स गिवन है. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 10 नंबर्स आर देयर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दोस नंबर्स, ठीक है. सबसे पहले वो जो नंबर्स डाटा है लिख लीजिए. सो यू कैन राइट डाउन data is the given data is 2 3 4 then 5 then 0 then 1 then 3 then 3 then 4 and then it's 3. So 5 and again 5. Okay, so 10 numbers are there. Since now the very first thing which you have to keep in your mind before finding the mean, median and mode, that is you have to arrange your given data in ascending order. आपको mean find करना है या फिर median find करना है या फिर mode find करना है. दोनों तीनों को find करने से पहले आपका जो given data उसको आप किस order में arrange कर लीजिए? ascending order में, ठीक है. अभी आपको ascending order में given नहीं है. अगर ascending order में given है तो then it's very good. But if it is not given in ascending order, so firstly you have to arrange this given data in your ascending order. Okay, so you can write down data in ascending order is क्या हो जाएगा? इसको ascending order में लिख लीजिए. सबसे लीस्ट नंबर क्या है? 0. ascending मीन्स छोटे से बड़े नंबर्स. Then it's 1, then 2, after that 3. How many times? 1 2 3 4. So 4 times 3, after that 4, after that 4 2 times 1 and 2 and then 5. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So yes, 10 numbers are there. ठीक है. अब आपने क्या किया? अपने गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है. नाउ लेट अस फाइंड आउट मीन. ठीक है ना. मीन का एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसका अंडरलाइन कर लीजिए. मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से. मीन को कैसे डिनोट किया जाता है? एक्स बार. तो एक्स बार का आपके पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. फिर सब ऑब्जर्वेशंस मतलब ये जो नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस मींस गिवन नंबर्स, ठीक है ना. जो आपको नंबर्स गिवन है सबको सम कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए. 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितने ऑब्जर्वेशंस हैं ये? दे आर 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यस, अब इनको ऐड कर दीजिए स्टूडेंट्स. 1 + 2 3 and 3 + 3 6 9 12 15 20 and 28. So 28 upon 10 कितना हो जाएगा? That is 2.8. तो मीन आपके पास कितना आ चुका है? 2.8. So your mean is 2.8, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज मीडियन. सबसे पहले आप लोगों ने क्या फाइंड किया? मीन, ठीक है. After that, we are going to find median. Now, see. Since for median, please you may open your book, page number 266.
66। ठीक है स्टूडेंट्स, मीडियन के लिए दो केसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले दो पॉइंट्स आपको गिवन उस पेज पे 266 पे। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन, एन क्या है, स्मॉल एन क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आपके पास स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, ठीक है, पहले सॉरी इसमें बुक में आपके पास क्या अगर ऑड है, तो आपका मीडियन क्या होता है, मीडियन इज वैल्यू ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन। एन प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन, ये क्या चीज है, ठीक है, इसको मैं सेकंड पार्ट में बताता हूँ। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10। 10 क्या होता है, इवन नंबर। तो अगर ऐसा है, देन द मीडियन इज द मीन ऑफ एन अपॉन टू एंड एन प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, हाँ जी। देखो अब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, इवन, सो यू कैन राइट डाउन सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, observations is 10, that is even। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10, जो कि क्या है, इवन है। अगर ऑड होते तो हम लिखते दैट इज ऑड। ठीक है, अगर 7 या 9 होते तो 10 दैट इज इवन। सो मीडियन इज, मीडियन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, मीडियन क्या होता है, लिखा हुआ है बुक में n अपॉन टू। n अपॉन टू, n कितना है फ्रेंड्स, ये n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, n इज, आप ऐसे लेते हैं n ऑफ ऑब्जर्वेशन को ब्रैकेट में n 10 है ना, तो क्या है, किसका मीन है, लिखा हुआ है मीडियन इज n अपॉन टू। n अपॉन टू मतलब 10 अपॉन टू। यू कैन राइट डाउन मीडियन इज मीन ऑफ, इसी कॉन्टिन्यूएशन में है, मीन ऑफ 10 अपॉन टू एंड n अपॉन टू प्लस वन एथ। n अपॉन टू, n कितना है, 10, सो n की वैल्यू पुट कर दीजिए प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का क्या है, मीन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू, मीन कैसे निकालते हैं सिर्फ, मीन या फिर एवरेज एक ही होता है। मीन क्या होता है, दो नंबर्स का अगर आपको मीन फाइंड करना है तो उन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अगर 3 नंबर्स का फाइंड करना है, 3 नंबर्स को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ये चीज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, 2 ऑब्जर्वेशन का, तो दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो 10 अपॉन टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 10 अपॉन टू 5, सी इसको सॉल्व कीजिए, 10 अपॉन टू 5, 5 प्लस 1 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, दैट मीन्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो आपने असेंडिंग ऑर्डर से ध्यान रखिए, इसलिए मैंने आपको बोला था कि गिवन ऑर्डर को क्या, डाटा को क्या कर लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। अब जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको देखो, उसमें फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 3, सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आपकी 3 प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपकी क्या थी, 3, तो फिफ्थ के आगे क्या, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन भी क्या है, 3, सो 3 प्लस 3 अपॉन 2, 3 प्लस 3 दैट इज 6 अपॉन 2, सो दैट इज 3। तो मीडियन आपका क्या आ चुका है यहाँ पर, 3, सो योर मीडियन इज 3। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट मोड। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट मोड। ओके, मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मोस्ट अकरिंग मतलब इस पूरे डाटा में, ठीक है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है। देखो 1 सिंगल टाइम, 0 भी सिंगल टाइम, 2 सिंगल टाइम, 3 कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स, 4 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 3। सो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि सिंस, या फिर हेयर 3 occurs most frequently मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है, most frequently, that is how many times, 4 times, so mode is 3। जो नंबर सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, मोड। ठीक है ना, सो दिस इज योर मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, ये आपका स्टूडेंट्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सिमिलरली इन सेकंड क्वेश्चन आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड मोड। वहां पे 15
ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है। मीन सिमिलरली आएगा। मीडियन में क्या है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 15 ऑड है तो वहां पे क्या होता है, मीडियन क्या है, n+1/2, n+1/2, जैसे n है 15, 15+1 16, 16/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8th ऑब्जर्वेशन जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा मीडियन। मोड क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। Okay. Now, see, let us do question number 3. Question number 3 में आपको एक डाटा मिसिंग है, ठीक है ना, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। Question number 2 is your homework. So, question number 3 is, the following observations have been arranged in ascending order if the median of the data is 63. आपको एक डाटा गिवन है, वो क्या लिखा हुआ है कि वो ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज करे हुए हैं, ठीक है ना, और आपको उनका मीडियन गिवन है, ठीक है, 63, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ओके, सो कैन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3. Observations in ascending order are, observations in ascending order are, they are already arranged in ascending order. वो आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो क्या क्या नंबर्स हैं लिख लीजिए, 29, 32, 48, 15, x, x+2, 72, 78, 84, and then last 95. And median is given to you as 63. median आपको कितना गिवन है, 63, ठीक है ना, डाटा के लिए, क्वेश्चन के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू काउंट दैट हाउ मेनी, मीडियन क्या होता है, पहले आपको मीडियन के लिए देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। So let us see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number of observations are even. So you can write down, since number of observations क्या होता है, small n, is 10, that is even. तो मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या हो जाता है, कौन कौन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, n/2th ऑब्जर्वेशन का एवरेज किसके साथ, या मीन किसके साथ, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन के साथ, अपॉन 2, मतलब दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर लीजिए, n/2, n कितना है, 10, तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5th ऑब्जर्वेशन, प्लस n/2 कितना आया, 5, मतलब n कितना है, 10, 10/2 is 5, 5 + 1 gives you 6th observation upon 2. So देखो क्वेश्चन से, 5th ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5th, 5th नंबर ऑब्जर्वेशन कौन सा है, x, प्लस 6th ऑब्जर्वेशन का नेक्स्ट क्या है, x+2 अपॉन 2 इज इक्वल्स, अब देखो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मीडियन, मीडियन आपको कितना गिवन है, 63, सो यू कैन पुट हियर 63। देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 63 इंटू 2 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स गिव्स यू 2x प्लस 2, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 126 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, सो 126 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x, दिस इज 124 इज इक्वल्स टू 2x, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 124 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, तो x कितना हो जाएगा आपके पास, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे दैट इज 62, सो योर नंबर इज 62, तो x की वैल्यू कितनी है, 62। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज 62, ओके।
You can note this question. After that, question number 4 is find the value of mode, ठीक है, of the given data. आपको given data given है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है. दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन. लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मोड फाइंड करने से पहले या मीन फाइंड करने से पहले या फिर मीडियन फाइंड करने से पहले यू हैव टू अरेंज योर गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना. तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में गिवन नहीं है, पहले आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट मोड, ठीक है. मोड क्या होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, मोस्ट अकरिंग, सबसे ज्यादा बार जो नंबर आपका अपियर हो रहा है, ठीक है ना. दैट यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर ओन. नॉट टुडे, वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है. यू हैव नॉट टू डू क्वेश्चन नंबर 6, you have to do only up to question number 5, ठीक है. So first, third and fifth I am here doing. First and third I have done. Question number 5th I'll explain you, or I will just do on the board. Question number 2 and 4th is your homework that you have to do on your own. See now, question number 5th is find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table. एक टेबल आपको गिवन है, ठीक है, उसका आपको मीन फाइंड करना. मीन सैलरी मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द मीन. से डाटा आपको गिवन है. देखिए फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे डाटा है ना, वो एक सिंगल डाटा गिवन नहीं है, 2 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है. सबसे पहले आपको लिखा हुआ है सैलरी. क्या लिखा हुआ है, सैलरी. यू कैन राइट डाउन सैलरी, ठीक है. उसके बाद आपको गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डाटा है जिसमें 2 कॉलम्स बने हुए हो तो उसको बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा, ठीक है. लेट मी टेल यू, जो सिंपल ऐसे डाटा जैसे आपको क्वेश्चन में 1st, 2nd, 3rd, 4th में गिवन है, सिंपल एक ही टाइप का आपको डाटा गिवन है, उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है. मतलब कोई भी इसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए, तो उसमें मीन कैसे फाइंड किया जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जब इसमें ग्रुप्ड मतलब इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसे 2 ग्रुप्स, तो उसका ये फॉर्मूला नहीं है, उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है मीन फाइंड करने का, ठीक है. मीडियन और मोड का भी होता है, लेकिन वो भी आपकी इस क्लास में नहीं है, दैट यू विल स्टडी इन योर 10th स्टैंडर्ड. ये आपको बता रखे कि अगर ग्रुप्ड डाटा गिवन है तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे. जो पहला कॉलम होता है ना, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई. क्या डिनोट करते हैं, एक्स आई. ऐसे एक्स लिखिए और इसके ऐसे बेस में सबस्क्रिप्ट में आई लिख दीजिए, ठीक है ना, एक्स आई. नेक्स्ट जो आपका डाटा है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं एफ आई से. एफ ऐसे बेस में आई, ठीक है, एक्स आई एंड एफ आई. सो दिस इज योर एक्स आई एंड दिस इज एफ आई. तो जो वैल्यूज है वो लिख लीजिए. 3000 से लेके मेरे ख्याल से 1000 तक है. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 and 10,000. Yeah. And the FI is 16, 12, 10, 8, 6, 4 and 3 and 1. ठीक है, ये आपके पास गिवन है. अब देखिए इसके लेट मी टेल फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला ऑफ मीन. मीन का फॉर्मूला है, मीन क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई. ये फॉर्मूला है समीशन ऑफ, ये इस टाइप से आप लोगों ने क्या बनाना है, समीशन, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई. सबमिशन मतलब सम करना है, ऐड करना है. सम पढ़ते हो ना, सम, फाइंड द सम. तो सबमिशन मतलब सम करना, किस चीज का, एफ आई इंटू एक्स आई. तो मतलब पहले एफ आई और एक्स आई को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप लोगों ने एक और कॉलम ऐड कर लेना है जिसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, एफ आई एक्स आई. मतलब आपने क्या करना है, एफ आई वाली वैल्यू को एक्स आई के साथ, मतलब इस एफ आई वाली वैल्यू को एक्स आई के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. सो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा,
32 48, so it's 48,000. ठीक है. After that 12 into 4, it's again 48. 48,000. Then 5,000 into 10, 50,000. 6 into 8, 48. Again 48,000. Then 7 into 6 gives you 42,000. 8 into 4 gives you 32,000. 9 3 is 27. 27,000. Then 10,000 into 1 gives you 10,000. ठीक है. एंड लास्ट, अब देखो, अब आपको क्या फाइंड करना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को सम करना है. तो यहां पे देन यू हैव टू फाइंड आउट समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई वाली जो कॉलम को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए. सी 0 0 0 1000 तो एज इट इज आ जाएगा. अब ये रहे नंबर 8 और 8 16 16 24 26 28 35, so it's 5, sorry 35 है ना, so 5 and 3 carry, 3 plus 4 7 7 11 11 16 20 24 27 29 and 30, so it's 305,000 means 3,05,000, so it's 305,000 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई. समीशन ऑफ एफ आई वाले कॉलम को आप सम कर दो. सो यू कैन ऐड दिस 4 and 4 8 8 14 22 22 24 30 0 and 3 4 5 6, so it's 60. ठीक है, अपॉन 60. अब इस क्वेश्चन डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, 0 0 eliminated. Let us say, is this coming in the table of 3? 3 से eliminate हो रहा है क्या? ऑपरेटर हम एक बार चेक कर लेते हैं. पहले 2 से कर लेते हैं. It's 2 3 and then 2 1s are 2, then it's 5s are 10, 2s are 24 4 and then 5 and then 0. 3 5s are 15, then 0. No, it's not cancelling by 3, so इसको just divide कर दीजिए. 3 5s are 15, then 0s are 0, then it's 20. So 15250 को 3 से divide कर दीजिए, then 25. 8s are 24 और 3s are 9.33. तो ये आ गया आपके पास x बार मीन 5083.33. ठीक है ना. This is your mean for this question. ठीक है. And this first you have to show this table properly. ठीक है. Just draw the lines with pencil and scale, and then you have to find out this mean. Okay. This is your solution of question number 5. Again, I'm saying you have not to do question number 6 on in your fair notebook, and question number 2 and 4 is your homework that you have to do on your own. With this chapter is over. In the next video, we'll be starting next chapter of your course. So, okay. Thank you and have a nice day.